Hello students, good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Manvi, please start my video. I guess it's not saying that your host cannot, host has disabled it. Hello Manvi. Hello, sir. Yes, please start the, like it says when I'm trying to start my video, it says that host has disabled. Oh, I'll just check. Sir, you made me the host. Okay. Just a minute, I will. Should I, Sir, are you able to use your video right now? like I am not able to open the video. Can I log out and join again? Or can you log out and join again? Yes. No. Okay. So students, last class, what did we do? Last class, okay. Illustration, question we are doing. Okay. Analogy. Okay, guys. So we did series, parallel, and all. No, we have completed, right? Annular cylinder, yes. Radial flow of heat, and that thing we have done. So we have done radial heat flow. No, okay, we have done. Okay. Series, parallel, we have discussed. No, series, parallel. Instance. Okay, this we have done. Okay, so we have not done this one. Wheatstone bridge we might have not done. Wheatstone bridge. Okay, Wheatstone bridge we might have not done. Okay, then we'll start from here. Huh? So Wheatstone bridge, in the Wheatstone bridge, in current electricity, so it is in current electricity capital. So it is a 4-point network. 4-point network. This will be taught in current electricity also. लेकिन यहाँ पे भी एक दो sum है. So we are doing this one. Okay, now it's a 4-terminal network. 4-point network, 4-terminal network. So you have 4 points. 1, 2, 3, and 4. So these are the 4 points, and across each point there is one resistor, like this. R1,
R2, R3, R4. So it's a 4-point network. Let us name them A, B, C, and D. Okay. So 4-point network, and across between these two terminals you have resistance R1, R2, R3, and R4. And between any diagonally opposite points, between any two diagonally opposite points, you draw a battery. And between other two diagonals, we have this resistor R. So this arrangement is called as Wheatstone bridge arrangement. This arrangement is Wheatstone bridge arrangement. And of this arrangement, we work in the balance condition. Okay, what is balance condition? Balance condition of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Okay. In the balance condition, you'll see that you have in the balance condition have. Okay, so this is the balance condition. A balance condition, what is there? Balance condition happens when this upon this current reach limit will be proved. अभी के लिए सिर्फ याद रखना है. This ratio upon this ratio is equal to this upon this. R1 by R2, this upon this, equal to this upon this, R3 by R2. This balance Wheatstone bridge, this condition happens when this upon this is equal to this ratio upon this, this ratio. Or you can also write this way. This upon this is also equal to this by this. Or so you'll get the same thing. R1 by R3, R2 by R4, same thing. This is balance Wheatstone bridge. This upon this is equal to this upon this, or this by this is equal to this by same thing. So this condition happens when there is a Wheatstone balance. अब जो है, now that in this condition, in this balance condition, when this happens, voltage at this point is equal to this point. This will be proved. अभी नहीं, वो current stream में आएगा. So this is equal to this. So that means voltage across delta V across BD is 0. Voltage is same. So voltage difference, potential difference. If potential difference is 0, so there will be no current through this. So you can remove. Therefore, I is 0 in this resistor. So you remove R5. So you remove R5. Yes. So when you remove R5, so how it will look? The circuit will look simpler. See, ये वाला ऐसा हो गया और ये ऐसा आ गया, and this and this. This is R1, R2, R3, R4. So beach wala you have removed because of the Wheatstone bridge, using the Wheatstone bridge concept. And now this circuit you can solve. This they are in series. ये वाला भी जो है series. Circuit simplify हो जाता है, right? So this arrangement is called as Wheatstone bridge arrangement. Please copy this one. So copy this one. We'll discuss everything. So
Wheatstone bridge is what? When you have registers. Wheatstone bridge ये याद रखना है. आगे current stream में जो है derive होगा. तो अभी what you will remember कि भाई ठीक है Wheatstone bridge में you have a 4 terminal network, 4 point network, 4 points हो. ठीक है. अब इसमें इतना you have to memorize ये वाला prove करने जाएंगे. हाँ. ये हर्षल ओके अनम्यूट करना है क्या? ओके ओके मानवी प्लीज अनम्यूट. You have some doubts. Harshal? Hello. Yes. Okay. Who is the co-host? Who is the co-host? Let me check. Who is the co-host? Ashutosh. Ashutosh is that Manvi. Let's say Vansh is there. Hello, Vansh. Can you unmute Yes, us? sir. Yes, sir. Can you unmute and mute everybody? Yes, sir. Okay. आज co-host का option नहीं दिख रहा है इसको. पता नहीं क्या हो गया. Yes, Sir, sir. can you Exactly. explain this again? I got disconnected while you were discussing this. Okay. Sir, Okay. sir, I Then have a after doubt. that, VB equal to VD. हाँ, Yes, नहीं, sir. I ये यहाँ want. तक पहले ये वाला कॉपी कर लिया. सब पहले कॉपी करो. Yes, sir. I've Everybody taken the copied? screenshot. Yeah. Yes, sir. Sir, देखो, wait a यहाँ second. इसमें गाइस देखो एज इट इज आपको ये वाला याद रखना है. इसका डेरिवेशन वगैरह ये कौन सा चैप्टर का है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्ली डिराइव होगा. अभी के लिए देखो कैसे याद रखना है. तो सर ये खाली रेशियो याद रखते हैं ना अभी के लिए. 4 पॉइंट नेटवर्क. हाँ, अपना गाइस माइक बंद करो. आप लोग किसका है माइक ऑन है? हाँ, इट्स अ 4 टर्मिनल नेटवर्क. हाँ, सो व्हेन यू हैव 4 टर्मिनल नेटवर्क, 4 रजिस्टर्स पहले कनेक्ट किया. R1, R2, R3 एंड R4. यहाँ तक अंडरस्टूड? यस फिर उसके बाद किसी भी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में यू हैव कनेक्टेड बैटरी. दूसरे डायगोनली अपोजिट पॉइंट के बीच में यू हैव रजिस्टर. सो इस अरेंजमेंट को वी कॉल एज व्हीटस्टोन ब्रिज. दिस यू हैव टू एक्सेप्ट. Sir, फिर सर डाउट हाँ, for second diagram, is there any relation? एक रुको अभी रिलेशन का नहीं, पहले यहाँ तक समझ में आया व्हीटस्टोन Yes, ब्रिज? sir. तो मुझे डाउट था कि पूरे सिस्टम में करंट सेम ही रहेगा ना, तभी वोल्टेज. अरे सेम डिफरेंट नहीं करना है. अभी रुको, अभी यहाँ तक sir. समझ में आया. Sir, I want to ask that are the both diagrams same? Like, will the value be of the voltage be नहीं. same throughout? नहीं, don't ask the question. You tell me you have understood this setup. The setup. first setup, yes. Only this setup. This ये Yes. वाला. अभी Yes, this- sir. Beyond. फिर उसके बाद ऐसे सेटअप को वी कॉल एज व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज बनने के बाद इसका बैलेंस कंडीशन क्या है, इसमें हमें देखना है. बैलेंस कंडीशन यहाँ पे लिखा है बैलेंस कंडीशन इज व्हेन. कब होगा ये कंडीशन बैलेंस? कब होगा? व्हेन R1 by R2 is equal to R3 by R4 रेशियो. ना, रेशियो का मतलब है जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, और ये 3 है और ये 6 है. तो 2/4 is same as 3/6. रेशियो तो सेम हुआ. तो उस केस में दिस ब्रिज
is called as balanced Wheatstone bridge. बैलेंस के लिए कंडीशन है. This everybody understood? यहाँ तक किसी को डाउट? सर मुझे Sir, So it's a rule, sir. वो नहीं समझा. यहाँ तक आयुष कोई डाउट? sir, I have a doubt. I wanted to ask that, why do we have to remove R5 for my? नहीं This नहीं is my पहले first वो doubt. उसके R5 अभी आया ही नहीं है. पहले ये डायग्राम और ये यहाँ तक. Oh, till Sir, there, yes, sir. वो Sir, समझा. sir, वो नहीं समझा. हाँ. sir, I have made you the host because students were asking that if we want to personal message, sir, so how will we do that? So I have made you the host. ओके ओके ओके. चलो ठीक है. ओके अच्छा. सर अब देखो यहाँ पर. सो हाँ. तो मुझे R1 by R2 is equal to VB आया वो नहीं समझा मुझे. R1 by R2 is equal to VB voltage at B. R1 by R2 is voltage of B कहाँ लिखा है? सर आपने लिखा है ना R1 by R2 equal to R3 Sir, by फिर आपने अरे नहीं 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 नहीं. अरे ध्यान से सुनो. Wheatstone bridge बैलेंस कब बोलेंगे? जब ये वाला कंडीशन होगा. हाँ सर वो समझा. अभी यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर वो समझा. ओके सर. तो बैलेंस कब होगा? जब ये रेशियो होंगे. इसके नंबर्स कुछ लेके बताओ कैसे होंगे नंबर्स. कोई नंबर्स की वैल्यूज लेके बताओ. 4, 6, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1 by 4. 1 हाँ, 2 one- 2 4. हर्षल 1 नंबर बताओ कोई. 2 4 8 16. हाँ 2 4 8 Okay, 16. sir. कोई से भी रेशियो बैलेंस होना चाहिए. अब फिर ये आगे डिराइव होगा. करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में डिराइव होगा. जब ऐसा रेशियो आता है तो देन यू विल फाइंड दैट यहाँ का वोल्टेज इज इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज. ये कैलकुलेट हो जाएगा. प्रूव होगा. कौन से चैप्टर में? Current electricity. Current electricity. इन दैट चैप्टर sir. इट विल प्रूव कि जब ये रेशियो ऐसा आता है तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज. ये प्रूव हो Sir? जाएगा. अभी के लिए इस पे ध्यान मत दो. हमें अभी हीट ट्रांसफर पढ़ना है. अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो फिर वो उधर ना उधर रहेंगे ना इधर के ना. सर हम यहाँ पे करंट से कोई ये फायदा नहीं है. बस हमें वोल्टेज याद रखना है. यस यस यस. हाँ. Okay, sir. सो sir, I have a doubt in the. ये वाला याद रखना है कि जब ये रेशियो होगा ये वाला वोल्टेज इज इक्वल टू ये वाला वोल्टेज आएगा. ओके. Sir, this part is in current electricity, then why we are doing it here? अभी I आगे think we सब might be समझ में using it आएगा. over here. आगे सब समझ में आएगा. पहले ये वाला समझो ना. Sir, done. Done, sir, done. पहले ये वाला समझो. ये वाला हाँ यहाँ तक ये ठीक है. VB इज इक्वल टू VD. Yes, sir. Yes, sir. अब जब वोल्टेज सेम होगा तो मतलब वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा? 0. मतलब 0 हो ठीक है. जाएगा. वोल्टेज का डिफरेंस इज 0. उसका मतलब है इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. मतलब ओम्स लॉ से इसमें करंट 0 हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. तो बट की जरूरत नहीं होगी. ये सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. Sir, I have आप a देखो doubt यहाँ in the पर. second expression. हाँ सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या डाउट बताओ. Like, could you explain how come R1 upon R3 is equal to R2 upon R4? अरे यार फिर वहीं पे चलेगा तुम. बोला ना सर ने. मैंने बोला ना. तो याद रखो. You can continue. हाँ जब वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब बोलते हैं? जब this upon this is equal to this upon this, that is called as balanced व्हीटस्टोन ब्रिज. अब जब बैलेंस इसको इस कंडीशन को बैलेंस कंडीशन बोलते हैं. And in that balance condition, this voltage is equal to this voltage. In balance condition. Ayush, understood? Yes, sir. Yes, sir. Heard it. So, balance condition. हाँ. तो balance condition में क्या बोलेंगे हम? When this upon this is equal to this upon this, that condition is called as balanced condition. और उस balance condition में this voltage is equal to this voltage. तो जब ये वोल्टेज सेम होगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0. 0. 0. Sir, noted. Sir, screenshot ले लिया. So that's just a property of parallel things. No? ये हाँ क्या डाउट है? प्लीज टेल अगेन. No, sir, that's just a property for parallel resistance.
नहीं नहीं अभी तक नहीं नहीं वो पैरेलल सीरीज नहीं करो, अभी ये समझ में आया कि ये वाला जो है हट जाएगा. Yes, sir. एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Clear. Yes, sir. हाँ अब Sir, देखो इसको हटा देना है, इसको हटा देना है. देखो ये हटाने के बाद बैलेंस कंडीशन में इसको हटा देंगे, क्यों? इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. हर्षल हर्षल अंडरस्टूड? हर्षल यस सर यस सर. हाँ अब देखो इसको हटा दिए, तो इसको हटाने के बाद हाउ द सर्किट विल लुक लाइक दिस. यस सर. ठीक है. अब इसको हटाने के बाद ये सर्किट यहाँ सिंप्लीफाई हो जाता है. ओनली कब होगा? ये बैलेंस कंडीशन में ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? Yes, sir. yes, sir. ठीक है. अब ये हटा दिए तो अब सर्किट कैसा दिखेगा? देखो R1 R2 R3 एंड R4 है ना. Yes, sir. ठीक है. अब इसके बाद जो है इसका एनालिसिस इजी हो जाता है. यू थिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा? इजी होगा कि नहीं होगा बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kind of. ये दोनों कितने हो जाएंगे? R1 और R2. Series. Series. नीचे वाले R3 एंड R4 किसमें हो जाएंगे? Series. Series. तो इसके बाद जो है सर्किट सॉल्व हो जाएगा. राइट. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा होगा तभी जो है हम यूलर्स को यूज कर पाएंगे. एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हमें यूज करना है. पहले व्हीटस्टोन ब्रिज लिखा और उसके बैलेंस कंडीशन में अगर हुआ तब हम वर्क करते हैं. तो ये सर्किट सॉल्विंग टेक्निक्स के एक पार्ट है. सो कॉपी करो. Copied, sir. होगा Noted, sir. sir. Copy, sir. चलो ठीक है. अब जो है तो अब हमने क्या किया था? हमने इसको एनालॉजी ड्रॉ करके पढ़ा था. एनालॉजी क्या था? करंट, इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ थर्मल करंट. वहाँ टेम्परेचर है तो यहाँ टेम्परेचर से वहां पे क्या था? एनालोगस. Voltage. 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 अगर यहाँ पे थर्मल करंट है तो उसका एनालोगस वहां पे क्या था? Electrical current. Electric current. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है तो वहां पर कौन सा रेजिस्टेंस है? Thermal resistance. Thermal resistance. थर्मल रेजिस्टेंस. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थर्मल रेजिस्टेंस? L by K. L by Ka. L by. L by K. अब समझ में आ रहा है कि एनालॉजी ड्रॉ करके हमें फिर इसको आगे यूज करना है. हाँ? चलो ठीक है. अब इसके लिए जो है एक एग्जांपल अपना, हाँ एक्सरसाइज का एक सम है. एक्सरसाइज 1 ये वाला सम करके बताओ. 1 1 1. आयुष अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, for this from the booklet, right? यस बुकलेट का एक्सरसाइज 1 का 1 1 1 सम. यस कुछ डाउट? हाँ प्लीज टेल. No, sir. Sorry. हर्षल क्या डाउट है? सर कोई डाउट नहीं. हैंड इज रेज्ड. कुछ डाउट है क्या? सॉरी सर. योर हैंड इज रेज्ड. डाउट प्लीज हैंड किया हुआ है. सॉरी सर सॉरी सर. Done. चलो हाँ हाँ चलो. आई विल erase this one if everybody has copied. Copied, sir. Jeet understood this one? Yes, sir. Okay. Done, sir. Done. Yes, 1 sir. 1 1. Yes, Sir, sir. we have to take an assumption that length and cross section area will be the same, right? Yes. यहाँ पे assumption लेना है तो वहां पे लिखना पड़ेगा assume same length and cross section area of each rod. चलो जल्दी वाला करो जल्दी. Done, sir. Done.
सर अभी तो सर किया था सर फॉर्मूला। किसी को डाउट प्लीज आस्क इसमें। फिर 104 करो नेक्स्ट। सर आपने 109 का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है जब आपने दिया था। कौन सा 109 का? हाँ सर, इक्विवेलेंट के का। नहीं नहीं सर ने नहीं किया था, नहीं किया। 109 सर आपने नहीं दिया था। ओके रुक जाओ पहले 10 ये वाला करो जल्दी। 104 हो गया था ना पहले। हाँ सर 104 Sir, you have done 104. 104 कर लिए है? Yes, sir. हाँ सर क्लास में Yes, किया sir. था। ओके लास्ट क्लास में किया था शायद। Yes, sir. In the last class we did. ओके ठीक है। अब जो है सर इक्विवेलेंट हम लोग ने 111 में अज्यूम किया ना कि बैलेंस कंडीशन था। इसमें 111 में सर उसी से आंसर है वो बैलेंस। अरे वही तो पूछा है कि हीट फ्लो नहीं कर रहा है K5 से। देखो दिया है ना, द पॉइंट्स A and B are maintained such that no thermal current flows through the central rod. ओके सर, सॉरी सर, थोड़ा ठीक से समझा नहीं क्वेश्चन। हाँ गॉट इट सर। सर आपने 104 कब किया है? नहीं किया सर। सर आपने नहीं किया? नहीं किया सर, 103 किया था, 107 किया था और आपने 110 किया था सर। ठीक है करो ना, बातें भी कर रहे तो हैं। 104 आपने क्लास 10 में किया था। हाँ सर 104 किया था। नो सर। पर सर वो सब लोग जब चले गए थे तब किया था। सर किया था हाँ सर किया था। मतलब बाद सर, में किया किया था था। एंड में। क्या क्वेश्चन से आपने बता दिया था? अरे इतनी देर में हो जाता, तुम लोग बातें करते। सर विल वी डू क्वेश्चंस सर ये टुडे? वर्टिकल वाला रेजिस्टर नहीं है। अरे हाँ इसमें वाला नहीं है। ओके 104 के बाद फिर 109 करते हैं। हाँ इक्विवेलेंट वाला भी करते हैं। चलो हाँ 1 चेक में रुक जाओ। सर ये आप 111 वाला कर रहे हो? हाँ 111 वाला भी आया नीचे किसके ऊपर है? देखो ना यहाँ पर ये आ जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल टू R1 L by आइडेंटिकल रॉड्स है ना, तो सारे इक्वल ही होंगे K1 K2 K3 K4। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, R2/K2A L सेम। हाँ आइडेंटिकल रॉड्स कहाँ है? पहले ये वाला कर रहे हैं ना अपन 1 तो एरिया के इक्वल है। 104 में ना। ये 111 है। सर 111 कर रहे हो। अच्छा सॉरी सर। ओके। ठीक है, सेम लेंथ सेम एरिया। हाँ देखो L/K1 है, L/K2 है, फिर क्या हो जाएगा L/K3A। R4 को क्या लिखोगे L/K4A। सब में L/A कैंसिल करना, क्या आ जाएगा यहाँ पर K2/K1 और K4/K3। अब फिर देखो मैच करो आंसर। अनुष्का अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो 104 करो जल्दी। आयुष हो गया ना ये वाला? क्या? हाँ सर। इसको जो है एनालॉगस ऐसा सोच सकते हैं रजिस्टर की तरह, थर्मल रजिस्टर। Here you have temperature दिया है ना 200 और 20।
Yes, sir. 220. All have identical resistance, हाँ, thermal resistance R. सबका R assume कर लेते हैं same, identical. और ये वाली value. अब देखो next जो है ये दोनों किस में हो जाएंगे? Series. Yes, sir. This is D. ये 2R हो जाएगा वही वाला. and R ये वाला भी 2R. और ये D. R. फिर जो है इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R. 2R का R. R. तो Clear हो जाएगा. पैरेलल ना. अब 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है भाई. तो इसमें जो है थर्मल करंट टोटल जो आ जाएगा 3R. 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये वाला 3R हो जाएगा. तो थर्मल करंट I कितना आएगा यहाँ पर? 60 by R. I will be thermal current I will be equal to delta D by R. 60 by R. हाँ 180 मतलब 200 minus 20 divide by 3R which is 60 by R. फिर इसके और उसके बीच में लगाते हैं यहाँ पर, इसको टेम्परेचर ऑफ D बोल देते हैं. यहाँ पे क्या जाएगा? अगेन I is delta T by R. डेल्टा D देखो 200 और TB है. 200 सर आपने minus मार्किंग आगे फ्रॉम किया है. ये 200 D की जगह C होना चाहिए. आपने D भी DC लिख दिया. कुछ रॉन्ग लिखा है क्या? सर पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ेगा. सर सही है सर, छोड़ दीजिए. ओके ओके सी क्या सी है. अब रुको पहले ये I की वैल्यू यहाँ रखो. ये है ना यस सर आ जाएगा. 60 by R. TB निकालो कितना आता है ऐसे? 140. फिर वैसे ही फिर ओम्स लॉ इसके बीच में लगाना. सर सी के लिए हम कौन से टेम्परेचर्स माइनस करेंगे? 140 वाला? माइनस अब देखो यहाँ पर 140 एक मिनट. हाँ I इज इक्वल टू क्या लिखोगे? इसके क्रॉस डेल्टा D है ना, TC minus 20. सर 140 माइनस टीसी नहीं होगा क्या? हाँ वैसे कर लो, वैसे करना है तो वैसे कर लो. इसके क्रॉस भी लिख सकते हो इसको. किसके क्रॉस लिखना चाहते हो? सर ये बीच वाला इसके क्रॉस लिखना चाहते हो या इसके में? सॉरी सर. नहीं ओम्स लॉ किसमें अप्लाई करना चाहते हैं? BNC या CND? सर BNC. ठीक है तो BNC कर लो. टेम्परेचर ऑफ B कितना निकाला था? 140 निकाला. 140. तो 140 माइनस TC बाय R. ओके सर, अंडरस्टूड. तो सर अगर हम अभी फ्रॉम C to D करें तो हम लोग TC minus 20 कर देंगे ना? TC minus 20 by R करो, देखो कितना आता है. हाँ सर बस वो कंफर्म करना था. हाँ एक बार करके देखो, वैल्यूज निकाल के बताओ कितना आ रहा है आंसर. TC की वैल्यू 80. वैसे भी पे लगा सकते हो. BN हम लोग बोल सकते हैं ना कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है तो 60 का इंटरवल. हाँ मैथमेटिकली करो. फिर वो सब कई ना से कर. सर आपने लास्ट टाइम बोला था कि 109th के लिए कोई फॉर्मूला होता है ना? 109 के लिए करना है. ठीक है 109 करते हैं. पहले कॉपी करो. ये वाला हो गया. सर एक मिनट सर समझना. सर आज आप कुछ थ्योरी में नया कराओगे क्या? मेरी प्रॉब्लम से भी करना है, देखते हैं ना बीच में. और वो भी है हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स भी करना है. क्यों अभी जाना है कहीं क्या? नहीं सर, वो आज थोड़ा यूनिट टेस्ट था हम लोगों का कॉलेज का, तो अगर आप बता देते तो हम बाद में देख लेंगे सर अगर क्वेश्चन है तो. ओके हाँ क्वेश्चंस में. हाँ मेन क्वेश्चंस सर यूनिट टेस्ट में छाप के लिखने का है. हाँ सर सर सब आज से लिख रही है. ओपन बुक है. ओपन बुक ओपन बुक टेस्ट ही है.
पर चलो, सर चलो, पहले टेस्ट कभी लिख पढ़ा लिया ही है नहीं है उन्होंने। ना। पर ढूंढना पर भी अरे हाँ बातें वही करो तो। करो। सॉल्यूशंस लिखती है पहले। Can be submitted at any time in the day. चलो चलो, ये हो गया जल्दी। 109 भाई देखो, 109 में कहाँ पे क्या करना है हमें? वी वांट टू फाइंड इक्विवेलेंट ना। हाँ सर। Equivalent means you replace, है ना? You replace the composite object जो 3 rods है ना अलग अलग, with one single uniform object having same geometrical dimensions. ठीक है ना? ये ला, having same geometrical dimensions. So that means वहां पे हमारे पास कौन कौन से rods हैं? 3 ऐसे rod है ना, वो ये वाला 1, 2nd and 3rd। तो उसमें कितना कितना दिया है? k/2, 5k and k। k/2, 5k and k। क्या इसका लेंथ क्या क्या है? सबका एल है। Equal length. सबका लेंथ भी इक्वल है और एरिया भी इक्वल है। चलो ठीक है, तो आप इसको किससे रिप्लेस करोगे? रजिस्टर। Single rod. सिंगल रॉड के डैश। सबको ऐड कर देंगे सर। एक मिनट जाओ, सिंगल रॉड से रिप्लेस करोगे, उस सिंगल रॉड का लेंथ क्या होगा? रियल। रियल। तो उस सिंगल रॉड का लेंथ जो होगा 3l, और उसका एरिया जो यहाँ पे एरिया है वही एरिया होगा ना? यस सर, यही रहेगा। अब उसका मटेरियल जैसे ही कंपोजिट था भाई, यहाँ पर k/2 है, 5k है, k है, यहाँ पर 1 सिंगल k डैश। सर एरिया नहीं बढ़ेगा? क्या क्या? एरिया इंक्रीज नहीं होगा क्या, क्योंकि तीनों का अलग अलग एरिया दिया हुआ है ना? एरिया इक्वल क्या है। दिया? But they've given same Thermal area, same conductivity cross section. A1 A2 A3 ऐड कर दिया और क्या? First line पर. अरे नहीं रुको, क्या दिया? इक्वल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया ना। हाँ सर। थर्मल कंडक्टिविटी ही अलग है, बाकी दोनों सेम है। क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है। अरे क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला होता है ना? यस सर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया सबके लिए सेम तो है। ओके सर। चलो ठीक है। अब सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस such that their thermal behavior is same. Thermal behavior is same. Thermal behavior मतलब अगर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो T2 T1, T2 और T1, जो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ आपने डाला है वही टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ डाल रहे हो। तो फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस अगर थर्मल बिहेवियर सेम है तो और क्या सेम होना चाहिए? Thermal resistance. हाँ, थर्मल करंट सेम बिहेवियर है ना, थर्मल करंट सेम। Therefore, Sir, can you repeat the question you asked us now? सर वो सीरीज वाला नहीं कर सकते डायरेक्ट? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Yes sir. पहले तो कंसेप्ट तो बताने दो जाए पहले। ओके सर। सेम सीरीज थर्मल से करेंगे तो करेक्ट होगा। सर ये थियरी है। सेम ही है concept. तो क्या होना चाहिए? सेम थर्मल करंट, जैसे यहाँ पे T2 T1 डाला वही T2 यहाँ T1 डाला, तो सेम थर्मल करंट क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए, है ना? हाँ सर। अब देखो यहाँ पर सेम थर्मल करंट मतलब डेल्टा Q बाई डेल्टा T यहाँ पर, और यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा D क्या होना चाहिए? सेम ना? यस सर। Yes, sir. और डेल्टा Q बाई डेल्टा D कितना होता है यार? जो है T2 माइनस T1 बाई R ना, और यहाँ पर T2 माइनस T1 बाई R, T2 माइनस T1 भी कांस्टेंट है। यहाँ पर T2 माइनस T1 बाई R और यहाँ का T2 माइनस T1 बाई R होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा D। वो सेम होना चाहिए कि नहीं बताओ? यस सर। अब दोनों में सेम टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई
किया है तो उससे क्या मिल जाएगा, जो इनिशियल इसका है रेजिस्टेंस वही इसका होना चाहिए फाइनल वाले का। ये एवरीबॉडी एग्रीज? यस सर। यस नहीं सर ये नहीं समझ। अरे देखो ये बताओ कि जो है थर्मल बिहेवियर सेम होना चाहिए कि नहीं वहां पर? सर मतलब वो एक फैक्ट है क्या, थर्मल बिहेवियर सेम होना चाहिए? नहीं, थर्मल बिहेवियर का मतलब है फॉर अ गिवन टेम्परेचर डिफरेंस सेम अमाउंट ऑफ हीट रेट ऑफ हीट फ्लो मस्ट अकर, यस सर। है ना? तो सेम रेट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है अगर, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दोनों में क्या हो जाएगा, सेम। हाँ सर। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1 बाय R। यस सर। तो T2 माइनस T1 बाय R अगर दोनों में सेम है तो इससे क्या इम्प्लाई होगा? हाँ सर समझ गया। हाँ हाँ, तो R सेम आ जाएगा। चलो R, हाँ अब जो देखो पहले ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, फिर उससे डिराइव होता है। अब बताओ R के बारे में कैसे निकालेंगे? हाँ, इसका R कैसे निकालोगे? सर सम ऑफ द रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ, ऐड करेंगे सर। फिर फॉर्मूला में R1 सर इक्वल टू इसका R R1 इक्वल इसका R1 R1 कितना? इज L बाय A इंटू K बाय 2। L बाई K बाई 2A। हाँ, इसका कितना होगा? L बाय L by 5K। 5K. इसका कितना L है? बाय K। L/K. अब देखो यहाँ पर इसका कितना Three- आएगा? तीनों 3L by K dash. dash A। 3L/K. Yes. 3L बाई K कैंसल हो डैश। जाएगा K और L। ये समझ में आया क्या? yes Yes Yes, sir, sir. समझा। sir, then L and A gets cancelled, right? यस, हाँ अब K डैश आ जाएगा ना वंश? हाँ सर समझा सर। ओके ओके। नहीं, ये अप्रोच ये आना चाहिए, ये वाला जो लिखा है कि जो है ये फंडामेंटल है कि यू रिप्लेस this whole object by one single object having same geometrical dimensions such that their thermal behavior is same. Thermal behavior मतलब for a given temperature difference rate of flow of heat current is same. आगे एक illustration में क्वेश्चन है इसलिए ठीक से समझो ये वाला। इसमें किसी को डाउट प्लीज आस्क। आयुष? Wait sir, समझ रहा हूँ अभी, I'm just going through. ओके, अभी समझ रहे हो? अरे नहीं सर, मतलब समझ नहीं रहा हूँ, just going through, just brushing up. ओके ठीक है, जाओ। जानवी अंडरस्टूड? हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। क्या समझ में आया बताओ? आपने R initial is equal to R final लिया लास्ट On में। what basis? On what basis? सिंस वो इन सीरीज है इसलिए। अरे नहीं, देखो गाइस, ओके हाँ, जिसका एक मिनट देखो, इसलिए लिया क्योंकि जो है हमें इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब है यू रिप्लेस, स्टार्ट वहां से करेंगे ना, यू रिप्लेस दिस ऑब्जेक्ट विद वन सिंगल ऑब्जेक्ट हैविंग सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। अब इसको पूरा रिप्लेस करोगे ना 3L वाला ए क्रॉस सेक्शनल एरिया को वन सिंगल रॉड से रिप्लेस करोगे, और इसका थर्मल बिहेवियर सेम होना चाहिए। थर्मल बिहेवियर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T2 T1 वहां अप्लाई किया, वहां भी T2 T1 अप्लाई किया, तो सेम करंट जो यहाँ फ्लो रहा है वही वहां पे फ्लो होना चाहिए। अच्छा, तो आपने जस्ट कंबाइन कर दिया उन तीनों को। यस ओके सर, थैंक यू सर। यार, अब जो है इसमें यार इसमें एक्सरसाइज में कोई रह गया था क्या? सबके साथ हो गए थे। एक मिनट, 106 किया था क्या? सर होमवर्क में दिया था। होमवर्क में दिया था सर, होमवर्क में।
ओके ओके 106 102 हाँ सर 102 हो गया था क्लास में। हो गया था क्लास में। ओके 106 जल्दी करो ना अभी। सर हो गया, आपने होमवर्क हो में गया दिया। होमवर्क में। ओके ओके ठीक है चलो फिर गाइस चलो हाँ क्लास इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर। क्लास इलस्ट्रेशन PDF 6 PDF 6 वाला कोई ग्रुप पे भेज सकता है क्या एक और बार PDF 6? हाँ प्लीज हाँ, समरी भेज सेंड दो। करो। क्लास इलस्ट्रेशन PDF 6 हाँ फर्स्ट वाला लास्ट क्लास हो गया था। हाँ हाँ सर सर, भेज फर्स्ट वाला दिया। हो गया था। फर्स्ट वाला करा दिया यस सर सेकंड से करना स्टार्ट। ठीक है सेकंड वाला करो। Second question, that one, the normal body temperature of a person. क्या आगे करते जाओ। सर when did we do the first one? हाँ यस सर, कब किया था? Yes, so first one was not done according to me. नहीं हुआ था सर। क्लास illustrations at all sir. ओ नहीं हाँ स्टार्ट ही नहीं किए थे ना। कब किया था फर्स्ट वाला बताओ। नहीं सर किया था स्टार्ट आपने नहीं सर, बोला फर्स्ट और था। सेकंड दोनों करवा दिया Yes, था sir. आपने। सर वन हाँ, और सर, सेकंड नहीं फर्स्ट करवाया था। तो फर्स्ट वाला हुआ था 15 मार्च के क्लास में। हाँ सर, फर्स्ट हो गया था। सर फर्स्ट हुआ है क्लास में हुआ है सेकंड से करना है। सर। ठीक है सर, वापस करवा दीजिए ना। सर डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है वो तो। चलो रुक जाओ हाँ रुक जाओ करते हैं। Did you First take any extra class on 15th March? 15 का क्या। Yes, sir, I don't know. नहीं सर, आपने सिर्फ 2 सम्स मतलब स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने किए थे और कुछ लोगों ने नहीं किए थे मतलब। Sir, when did you take an extra class? No extra class was there. कब extra class मैंने कब लिया। ये लोग बोल रहे हैं कि है हाँ सर, बोल रहे कि अरे ठीक है जल्दी जल्दी करो हो जाएगा। मैं बोला था और फिर क्लास खत्म हो गया था। तो हीट यहाँ से इधर आ रहा है इस पेज से बैक पेज से फ्रंट पेज पे आ रहा है। The temperatures are 90 and 80 10. So यही हो गया जैसे से दिस बुक इस बुक में जो है ये पूरा पेज ये फ्रंट पेज इज मेंटेन्ड एट 90 और बैक वाला ये पूरा जो है सॉरी ये 10 और ये वाला 90। तो हीट जो है इस पेज से बाहर आ रहा है इस पेज से बाहर आ रहा है। सो हाँ भाई क्या लिखेंगे यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लो का क्या इक्वेशन आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस फॉर दिस डेटा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 80 90 minus 10 90 minus 10 k की वैल्यू SI यूनिट्स में कितनी है 0.80। यस सर, into 10 raised to एरिया क्या लिखेंगे एरिया कौन सा लोगे 100 centimeter square 100 सेंटीमीटर। 100 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 to the power minus 4 और लेंथ क्या होगा 10 raised to minus 2 1 centimeter ना। हाँ तो 1 सेंटीमीटर इज 10 to the power minus 2 और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। यहाँ पे रेट निकालना है कि हीट निकालना है वो अमाउंट ऑफ हीट ना टाइम हाँ टाइम हीट पर मिनट तो टाइम की वैल्यू रखेंगे ना 60 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू रहेगी 60। So per minute बोला है ना तो 60 करना पड़ेगा। यस सर। अरे Sir, we are getting the without taking 60 बराबर है seconds. सर। हाँ सर बराबर। अरे भाई टाइम 1 सर मिनट बराबर है सर। हाँ yes 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स ना। अब कहाँ चेंज है तो है वो 1 मिनट 60 सेकेंड रख दिया बस। हाँ या रेट निकाल लो
और 1 मिनट में निकालना, दिस इज रेट पर सेकंड होता है, इनटू टाइम कर दो, वही हो रहा है ना, टाइम तो जाके मल्टीप्लाई तो हो रहा है। सेकंड नेक्स्ट, सेकंड में थोड़ा बी केयरफुल अबाउट द यूनिट्स देयर, सेकंड में। हाँ Sir, room temperature is -47 or +47? 47 प्लस 47 हाँ. प्लस 47 लेना। हाँ चेंज इन टेम्परेचर में यूनिट्स मैटर करेंगे क्या सर? चेंज इन टेम्परेचर जो है, सर एक डाउट था, आपने डिसाइड कैसे किया कि हम लेंथ को 10 टू द पावर ऑफ -2 लेंगे, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना? ऐसा यूनिट्स में करेंगे ना। सर फ़ारेनहाइट को नहीं, सॉरी, मतलब 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है ना, उसको भी हम हमने 1 सेंटीमीटर को ही सिर्फ क्यों लिया? अरे रे नहीं नहीं नहीं, अरे भाई हीट कैसे फ्लो हो रहा है, इसके लॉन्ग फ्लो हो रहा है ना, इस एरिया के लॉन्ग, इस एरिया से हीट बाहर आ रहा है ना। अरे भाई अगर आपका ये ऐसा होता, एक मिनट देखो, अगर मान लो ये ऐसा है और आपको दिया रहता है हीट इज फ्लोइंग टू, हीट ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ से होके हीट ऐसे जा रहा है इधर, ठीक है, तो उस केस में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि एरिया क्या लोगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 10 × 1 है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 × 10⁻⁴ फॉर दिस डायग्राम, डिवाइड बाय लेंथ। अब हीट को यहाँ से यहाँ जाना है, लेंथ कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर। हाँ उस केस में 10 सेंटीमीटर लेते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस अगेन 90 - 10। ओके सर, गॉट इट। सर आपने 10 क्यों लिया एरिया को, बताओ ना बात। अरे भाई हीट इस ऐसे जा रहा है ना, अरे यार हीट उस विथ से पास कर रहा है। अरे हीट ऐसे जा रहा है ना इधर से, ओके, तो ये डायमेंशन क्या है, ये 10 है और ये 1 है ना, तो हीट ऐसे जा रहा है। ओके ये सर, अंडरस्टूड? यस सर, गॉट इट। ओके हर्षल, अंडरस्टूड ना? यस सर। नेक्स्ट सेकंड वाला बताओ कैसे किया। सर फोर्थ वाला एक्सरसाइज का ही है। एक मिनट, सेकंड पहले, सेकंड तो बताओ। अमोक, यू आर सेइंग समथिंग। हां No sir, I got my mistake sir. क्या मिस्टेक था बताओ। तो फ़ारेनहाइट में चेंज में हम डिफरेंस में अकाउंट करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1.8 करना पड़ेगा। ये 1.8 C + 32 भाई 97 का निकालोगे क्या आएगा, सर, 1.8 C। पूरा जरूरत नहीं है ना सर, सिर्फ डिफरेंस को सर सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन में। 1.8 C1 + 32 पे डिफरेंस सबट्रैक्ट कर देता हूँ ना उसको, तो दोनों इक्वेशन में सबट्रैक्ट करेंगे, 97 - 47। सर -47 नहीं, रूम का टेम्परेचर +47 है, माइनस नहीं। माइनस दी है। अरे वो डैश है। अरे वो हाइफन है, माइनस नहीं है। हाइफन है सर। सॉरी। अरे श्रेयांश, वहाँ वहाँ आदमी लोगों का कुल्फी बनाना है क्या -47 करके। C2 - C1 ये आएगा। अब फॉर्मूला लगा लो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, K/L टाइम्स T2 - T1। तो K इज गिवन ना, K कितना है 0.04, 4/100। लेंथ क्या लोगे, 0.04। लेंथ इज द थिकनेस ऑफ द क्लॉथ ना, 0.005 यस, 0.5/100 डिवाइड बाय एरिया 1.6 1.6। सर एल नीचे आएगा राइट, एल नीचे आएगा।
ये वाला जो है ये 1.6 और ये 0.5/100 और T2 माइनस T1 ये क्या आ जाएगा सेंटीग्रेड में 50/1.8। सर मतलब एग्जैक्ट आंसर उन लोगों ने शायद राउंड ऑफ किया। राउंड अप हो रहा है क्या आंसर? यस सर 355.5 आ रहा है, उन लोग ने यस 356 सर। लिख दिया। 355.5 584 टू बी प्रिसाइज। 5 रिकरिंग है। हाँ वही 5 रिकरिंग आ रहा है। सर मैंने दूसरे 584 कैलकुलेशन से किया। सर जनरल डाउट कितने डेसिमल प्लेसेस में देना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए? नहीं वो लोग तो आंसर ऑप्शंस में देंगे ना, ऑप्शन में ओके वेगा। ओके अच्छा ओके सर ओके थैंक यू। सर इन इंटीजर टाइप। नहीं वो तो 2 डेसिमल तक रहेगा ना। 2 डेसिमल लिखा हुआ ही रहता है पेपर में। ओके सर सर रहता है इंस्ट्रक्शंस। ओके हाँ नेक्स्ट करो थर्ड। I will replace this one. तो टेम्परेचर डिफरेंस गाइस ये फ़ारेनहाइट में मैटर कर जाता है, लेकिन केल्विन में वो तो नहीं रहता। हाँ हम केल्विन और C2 - C1 is K2 - K1। यस सर, मैंने वो केल्विन से वो कंफ्यूज हो गया था। Sir, can you please solve the fifth one? सर सॉल्व ऑल। आगे आगे करते जाओ। सर क्रोनोलॉजिकली चलते हैं ना। ओके ठीक है। थर्ड बताओ अभी कैसे करना है थर्ड। सर डायरेक्ट फॉर्मूला सर डायरेक्ट फार्मूला से डेल्टा क्यू आ जाएगा, फिर उससे Q उसको इक्वल टू ml कर देंगे। MLF को इक्वेट करना है। ओके K by टाइम्स टेम्परेचर डिफरेंस। K कितना गिवन है इसका? सर इसको M into LF से इक्वेट करना है। ओके M into LF और नीचे डेल्टा T ऐसा यूनिट्स में रखते हैं अभी। तो ये 46 एरिया कितना है 0.04 into 10 raised to -4 into 10 to power -4। टेम्परेचर डिफरेंस 100 और 0 100 - 0 और लेंथ 1 मीटर। तो इससे जो है रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस आ जाएगा। कितना आ रहा है आंसर इसका? 1.84 into 10 to the power -2. 1.84 into 10 to the power -2। सर 5.5 into 10 raised to power -5 ग्राम। एक मिनट, अरे केजी में आएगा ना इधर से। इससे कितना आंसर आया? यस सर 5.48 into 10 power -8। यस सर 10 to the power -8 kg per second। 5.48 into 10 to the power -5 5 gram per second। ग्राम पर सेकेंड। So why won't we consider the heat absorbed by the rod? वो हीट एब्जॉर्ब बाय द रॉड नहीं एक्चुअली जो है स्टेडी स्टेट हो गया। स्टेडी स्टेट होने के बाद वी आर डूइंग दिस एनालिसिस की रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। Okay, so it's after steady state. Okay. Yes, after steady state has been achieved. Okay. Thank you, sir. Okay. ये वाला LF की वैल्यू भी गिवन है। डेल्टा T भी 1 ये सब करेक्ट है ना गाइस? डेटा कुछ यहाँ रॉन्ग तो नहीं है? राइट है सर। सर नहीं सर करेक्ट है सब।
यस सर, यहाँ पर भी उन्होंने राउंड ऑफ किया है. ओके 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 ओके. क्योंकि वहां पर मास ऑफ द आइस मेल्टिंग पर सेकेंड, तो हाँ पर सेकेंड में डेल्टा m बाई डेल्टा डी तो निकालेंगे, हाँ पर सेकेंड. और टाइम को 1 सेकेंड ले लोगे तो हाँ इतने ही ग्राम टाइम पर सेकेंड वही हो गया. फोर्थ नेक्स्ट. अंश तुम क्या इरडो इरडो भी चालू कर दिए? अंश, विनय, okay. No, I was seeing the messages. अभी पहले सब बुकलेट, हाँ बुकलेट HCV करने के बाद, और जो भी आपके अलग बुक्स हैं सब करने के बाद. फोर्थ नेक्स्ट. भाई फोर्थ कैसे होगा? सर जहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा उसको कैलकुलेट करना है, उस पोजीशन को. तो सर वो तो 25 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि 1 मीटर स्केल है. यस, हाँ हाँ. 0 degree centigrade, 100 degree centigrade. It's a 1 meter scale. 100 centimeter scale. तो ग्रेडियंट यूनिफॉर्मली रहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ साइड. तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 25 सेंटीमीटर पे आ जाएगा. यस, हाँ. इस रॉड में आपको टेम्परेचर हीट फ्लो नहीं कराना है. तो इस रॉड के लिए I इज व्हाट डेल्टा T बाय R. इस रॉड का I0 मतलब डेल्टा T which is T minus 25 by R is 0, मतलब T 25, मतलब ये वाला एंड 25 से कनेक्ट करना. 25 का डिस्टेंस यहाँ इस एंड से डिस्टेंस हो जाएगा 25 सेंट. यूनिफॉर्म ग्रेडियंट. सर क्वेश्चन 5 HCV से है क्या? यस. सर आप ये वापस समझा सकते हो फोर्थ वाला? फोर्थ वाला, हाँ देखो फोर्थ वाले में क्या गिवन है कि आपके पास एक मीटर स्केल है, दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, एक मीटर स्केल और एक रॉड. मीटर स्केल में आपने ऐसा ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करके रखा हुआ है. 100 यहाँ पर, 0 यहाँ पर, 50 बीच में, 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20 ऐसा रहेगा. हाँ यूनिफॉर्म. हाँ सर. अब आपके पास एक रॉड है. एक रॉड का एक एंड 25 पे है और पूछा है दूसरे एंड को इस मीटर स्केल के किस पॉइंट पे रखें ताकि इसमें करंट फ्लो ना हो. I0 होना चाहिए. I इज डेल्टा D बाय R 0. डेल्टा D 0 मतलब टेम्परेचर डिफरेंस 0, मतलब यहाँ 25 है तो ये वाला भी 25 पे रखेंगे तो सेंड का 25 हो जाएगा. देयर विल बी नो फ्लो ऑफ थर्मल करंट. हाँ सर समझ गया. सर एक बार वापस बोलो ना. नहीं, ये बताओ कि जो है उसमें I0 करंट रिक्वायरमेंट है इसमें ना. यस सर. I0 का मतलब क्या होगा? I0 का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस इज 0. यस सर. इफ वन ओके एंड सर, इज गॉट एट इट. 25 तो दूसरा एंड भी 25 पे होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा. So that means ओके सर. यस सर. यस सर, समझ गया. okay. Jayashankar, how will you do fifth one? Can you just give 2-3 more minutes? Yes. Yes sir. Sir, I'm not able to. I am able to understand the concept, but I'm not able to understand one thing, that how will the block move, sir? What will cause the block to move? Gravity.
ग्रेविटी की वजह से Okay, नीचे आ sir. रहा है ना ब्लॉक. ओके ओके सर, समझ गया, मुझे लगा इक्विलिब्रियम में होगा सर. No, it is rotating ना. चरना रोटेट हो रहा है ना. एक मिनट गाइस, कॉपी करो, एक मिनट. Ashok, how will you do this sum? Working on. अरे वो स्टूडेंट नाम भूल गया. वो जो स्टूडेंट स्प्रिंग वाला जो लास्ट क्लास में डाउट पूछा था ना, कहाँ गया? क्या नाम था उसका? यस सर. अरे हाँ हाँ, इसको बताओ कैसे करोगे फिफ्थ सम. सर कर रहा हूँ सर, 1 मिनट. ओके ओके. सर क्या डाउट पूछा था? नहीं वो एक एचसीवी का लास्ट था शायद, कैलोरीमेट्री का लास्ट. हाँ सर, कैलोरीमेट्री का लास्ट. अच्छा सर. Jia, how will you solve this sum? What is your approach? We'll draw the diagram. सर आप एक बार सम समझा के थोड़ा हिंट दे सकते हैं? So wait sir, almost. Yes, yes. 25 kg आ रहा है. Alina, how should we do this sum? Ashutosh क्या 25 आ रहा है? Answer. 12.5. Sir, but how will that heat affect the motion of the wheel? Yes sir, same doubt. Yes, so that's exactly my question, sir. Kinetic energy लेंगे क्या? Yes, Kinetic Manvi, हाँ. kinetic energy of M is equal to the loss of heat from the सर wheel. फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं. एक मिनट रुक जाओ. हाँ Manvi, you're saying something. हाँ, please tell. तो जो मास है उसका kinetic energy लेंगे क्या? Loss of heat. मास नीचे I'm आ रहा not है. sure. Yes, मास जो नीचे आ रहा है उसका जो kinetic energy होगा वो कंटेनर से आएगा क्या? No, So do we mass work is, energy theorem? सर mass फर्स्ट is लॉ लगा falling. सकते हैं. हाँ, mass is falling with a constant speed.
mass is falling with a constant speed. We will rotate with that same speed. इसका speed constant है. First So law. one more question, sir. जाओ. Why will the sorry, एक मिनट जाओ. Somebody was saying first law. अमोघ हाँ. यस सर, फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, क्यू ढूंढ सकते हैं, डेल्टा यू जीरो होगा स्टेडी स्टेट पे, उससे अरे वर्क हीट कहाँ आ गया? हीट कहाँ है? सर वो We are not वेसल और supplying. कं We are वेसल not और supplying. Somebody was saying work energy theorem. Who was saying that? Yes, sir. Work energy theorem कैसे हुआ? Is it Nishit? क्या? Nishit, sir. Nishit. हाँ Nishit. Tell me how work energy theorem किस पे लगा रहे हो भाई? Work energy theorem किस पे लगा रहे हो? Sir, I was trying that approach. It's still incomplete. Work energy theorem. Mass m and the Chernov. Yes, sir. Yes, sir. Work energy theorem से हो रहा है. The turbine, the what is Yes, that? sir. Okay, Churner या turbine whatever. हाँ, क्या जाएगा इसमें? Work done by gravity ना प्लस भाई ये सिस्टम है आपका, ये भी सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, प्लस इसमें वर्क डन किसका हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का. नेगेटिव वर्क डन हो रहा है ना वाटर मॉलिक्यूल्स. अपोज करेंगे ना, उसको रेज करेंगे. सर कैसे नेगेटिव सर, समझ नहीं आया. अब ये बताओ कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसको इसके स्पीड को उसको एक्सेलरेट करेंगे या डिसेलरेट करने की कोशिश करेंगे? Decelerate. सर तो आप टरबाइन की बात कर रहे हैं? यस यस ये टरबाइन. ओके सर, हाँ सर फिर तो नेगेटिव होगा. यस. तो वर्क डन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन टरबाइन. एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ. वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन टरबाइन इज इक्वल टू kf माइनस ki. लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन m and turbine. चलो यहाँ तक तो हो गया. अब काइनेटिक एनर्जी वही मास m falling with a constant speed, churner turbine rotating with a constant speed, so change in kinetic energy of the system जीरो आ जाएगा. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर? वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो लिया. हाँ जीरो क्यों लिया तो? अरे कांस्टेंट स्पीड से हाँ किया सर, था सर, हाँ सर. अब जो है ग्रेविटी का वर्क डन, अगर मान लो ये छोटा नीचे dy डिस्टेंस गया तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा ऑन मास कैपिटल M? mgdy. प्लस या माइनस? प्लस प्लस. और एक हाँ इसको mg dy प्लस dw वाटर मॉलिक्यूल वाटर हाँ इज इक्वल टू जीरो. तो वर्क डन बाय वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन टरबाइन dw हो जाएगा माइनस mg dy. dt से डिवाइड कर देते हैं, माइनस mg dy बाई dt ना. ठीक है. अब जो है यहाँ पर, यहाँ तक तो समझ में आया क्या? बोला यहाँ तक किसी को डाउट? हाँ सर, बस मैं यही कह रहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हो रहा है, लेकिन उसका अप्लाई कैसे करेंगे ये पूछ रहा था मैं. ओके ओके. इसके बियॉन्ड थोड़ा डाउट है. सर dy by dt दिया हुआ है तो वो क्या? यस dy बाई dt v है. सर वर्क एनर्जी थ्योरम के अलावा कोई दूसरा अप्रोच है क्या? अरे और दूसरा रुको, अभी पहले ये तो करने दो. One doubt, sir. हाँ श्रेयांश क्या डाउट? सर आपने सर वाटर टरबाइन पे वर्क कैसे कर रहा है एग्जैक्टली? नहीं नहीं देखो मोशन अपोज कर. टरबाइन के जो ये है ना उसके विंग्स जो भी हैं सब घूमना चाहते हैं साइड. यस सर. तो वाटर मॉलिक्यूल्स में फोर्स इधर लगाएंगे ना. अच्छा ओके सर, गॉट इट. इसका ऐसा आएगा. अब जो है ये तो आ गया वाटर ऑन टरबाइन क्या क्या. तो अब ये वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन है ना,
ये क्या, ये किसका, बाई वाटर ऑन टर्बाइन आ गया ना, नेगेटिव आया। तो रेट ऑफ वर्क डन बाई टर्बाइन ऑन वाटर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? वाटर ऑन पॉजिटिव होगा, Negative of this. Negative of this. नेगेटिव ऑफ दिस। नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये वर्क डन हो रहा है, अब अमूक कह रहा है कि वर्क नहीं थ्योरम लगाना, अमूक डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ना। सो हीट तो कुछ है ही नहीं, वाटर में हीट तो कुछ जा नहीं रहा। अब वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, इतना नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा यू। यस हर इंस्टेंट सर पे डेल्टा यू 0 होगा और क्यू Yes, होगा, sir. क्यू विल हैव अ वैल्यू ना। वही टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू 0 यस होगा। सर। अरे जय एक मिनट जाओ, बताने दो मुझे। हाँ अब देखो, ओके सर। अब देखो ये वाला वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, है ना, ये वाला अगर पॉजिटिव हुआ है, देखो यहाँ पर ये वर्क डन जो है इसका नेट, ये आ रहा है कि नहीं ये वाला, है ना। तो यस लेकिन सर। अब हीट जो है क्या है हमारे पास, सो सपोज जितना ये वर्क डन हो रहा है इसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। किसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए? टरबाइन का, और उसकी वजह से वाटर का। हाँ तो वाटर का जो है इंटरनल एनर्जी उतना इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वाटर का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? हीट में जा रहा है सर। हाँ हीट जो है ये कंडक्टर के बाहर निकल रहा है ना यहाँ पर। यस सर। तो हम बोल सकते हैं ना इसको डायरेक्टली, जय यही लिखेंगे ना, कंडक्टर के बाहर आ रहा है। हाँ सर, डी क्यू बाई डी टी के बाई टी टू माइनस टू। यही बोल रहे थे ना। हाँ सर। तो हर इंस्टेंट पे इतनी एनर्जी उससे बाहर निकलती चली जा रही है, डेल्टा क्यू, और उसकी वजह से देखो इस डेल्टा क्यू इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है, लेकिन डेल्टा यू 0 है ना, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो यू आर सेइंग दिस वन, क्या जय ऐसा बोल रहे थे क्या, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू और ये कांस्टेंट है, तो जो भी वर्क डन होगा वही वो हीट में डेल्टा जाएगा। क्यू हो जाएगा। ओके हाँ सर यू कांस्टेंट होगा, डेल्टा यू 0 होगा, राइट? यस यू कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा यू 0 रहेगा, इसलिए हटा दिया ना इसको। करेक्ट जय। डेल्टा यू 0 इसलिए होगा ना क्योंकि 0 डिग्री पे मेंटेन्ड है वो। हाँ इट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके हाँ 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 जय यू आर करेक्ट, हाँ तुम्हारा ही करेक्ट आ गया, डेल्टा यू 0। अब जो है उसका, हाँ दूसरा, अब दूसरा इतना इतना इंटरलेट करने की बजाय पूरे को सिस्टम लेते हैं, बोलते हैं कि देखो लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, पूरे को सिस्टम ले लेते हैं पूरे को, है ना, ये पूरा। एक मिनट इसे कॉपी कर लेने दीजिए फिर एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके 1 मिनट बस। यस सर। अब देखो सेकंड भाई, ये पूरे को सिस्टम ले लेते हैं भाई, इसका क्या हो रहा है, फॉल रेट ऑफ लॉस ऑन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है ना, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी Yes, कंटिन्यूअसली sir. लूज कर रहा है ना। तो जा कहाँ रहा है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअसली अगर लूज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है नेट एनर्जी कंजर्वेशन के रेस्पेक्ट में हम बोलेंगे वही जो है हीट के फॉर्म में आ रही है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कंडक्शन। तो ये तो सिंगल स्टेप में हो गया।
हाँ डायरेक्टली भाई पूरे को ले लेंगे, हम बोलेंगे इसका कंटिन्यूअसली पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कहीं पे काइनेटिक एनर्जी वगैरह कुछ रेस होना चाहिए था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, हर चीज कांस्टेंट है, मतलब वो जितना रेट से लॉस हो रहा है उतने रेट से हीट फ्लो बाहर हो रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. Guys, ये understood? Everybody understood this one? So voice is very low Yes, sir. actually. Yes, sir. Your voice is very low. Yes, sir. Yes, sir, it's low. Hello, students, everybody understood? So now Your also it is voice- very low. Yes, sir. Understood. So get Your a voice bit is very closer, low. sir. Mhm. So get Are a you bit closer to the. Yes, sir. understood now? Yes, sir. Now, Yes, sir. now- Sir, अब Now आ it's रही है good. थोड़ी, Good, अब आ good. रही है sir. ओके ओके ठीक है, चल जल्दी करो, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला। यस, जो इसका वर्क डन है यहाँ पर, वही वर्क डन की वजह से इसका बढ़ना चाहिए था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रहा है, मतलब वही वाला हीट बाहर आ जा रहा है। So could you repeat that the second procedure? Actually, I could not hear it properly. हाँ देखो सेकंड वाले में क्या है, जैसे हम बोलेंगे अगर ये इसका पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ना चाहिए था, ना इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, ना यहाँ पे कहीं कोई बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब वो एनर्जी जहाँ कहाँ आ रही है, तो हम बोलेंगे जिस रेट से एनर्जी लूज कर रहा है उसी रेट से एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। हाँ, सर वो तो दोनों ही केस में वो रिलीज ही हुआ ना। दोनों ही केसेस में नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लॉस हुआ ना, ये वाला जो है ये फॉल हो गया हाँ आपका। सर, और इधर से भी हीट लॉस हुआ, और हीट लॉस भी और पोटेंशियल एनर्जी भी लॉस हुआ, तो एनर्जी कहाँ कंजर्व हुआ? नहीं एनर्जी जो है देखो यहाँ से एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या मैकेनिकल जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी ना, तो हाँ पोटेंशियल सर। एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है ना। ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी देखो पहले तो लार्ज हाइट पे था, फिर कम हाइट पे था, तो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। ओके सर। चलो सिक्स्थ वाला करो सर एक्चुअली गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे ना सर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है हाँ मतलब लॉस, हाँ मैंने लॉस बोल दिया, वो पता। हाँ द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। इससे फिर आंसर मैच हो रहा है ना आपसे? हाँ सर 12.5 kg आया। ओके ओके, नेक्स्ट करो, सिक्स्थ वाला जल्दी करो। फिर आज किधर तक करना है? आज 10 तक तो नहीं हो पाया। सर 5 मिनट ही बाकी है। सर आज यहाँ पे चलो 7 तक तो कर दो। हाँ सर। 7th वाला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? 6 and 7 ओके। सर एक सेकंड में 6th अटेम्प्ट करने दो ना। ओके ओके, आई विल रेज दिस वन, 5th वन। यार अभी कौन सा एग्जाम आज? सर यूटी कॉलेज यूनिट टेस्ट है सर, इट्स एन असाइनमेंट बेसिकली, इट इज नॉट एग्जाम, इट्स असाइनमेंट। सर इट्स नॉट ओपन बुक असाइनमेंट। ओपन बुक है सर, वाला भी बुक आपके लिए है। सर I've already written the exam. क्वेश्चन पेपर पहले ही दे दिया। 6 का डायग्राम आई विल ड्रॉ। तो ये 6 का डायग्राम है। इसमें रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट और इसमें रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट। फाइंड द रेशियो। क्रॉस सेक्शन सेम है ना, क्रॉस सेक्शन सेम। Sir, basically it will be the length ratio of two lengths. हाँ मतलब डेल्टा क्यू बाय हाँ के
एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, हाँ लेंथ, ओके हाँ इसका लेंथ बेसिकली वही जाएगा पाई आर और T2 Pi minus r by 2. 2 नहीं, r. 2 Pi minus r आएगा by ना? 2 r. Yes. Pi L by 2. अरे से पाया होगा। वो रेडियस इज आर। Yes sir. Yes sir. तो उसका pi r होगा तो सर वो जो डायमीटर जितना लंबा है ना सर, तो 2 r हो जाएगा। अरे हाँ T2 minus T1 और ये वाला 2R। सर इसमें कौन सी अप्रोच लेनी है, ये मेरे को एक्चुअली पकड़ में नहीं आया स्टार्टिंग में। नहीं from the question you can see find the ratio of heat transfer to a cross section ना, तो मतलब रेट ऑफ हीट पूछा है, तो रेट ऑफ हीट एक का निकालो, पहले वाले का कितना हो जाएगा K by L times T2 minus T1, दूसरे का भी ऐसे आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ लेंथ चेंजेस है। सर आप एक बार 7th वाले का भी डायग्राम बना सकते हो, मतलब विजुअलाइज ही नहीं हो रहा। 7th का एक जहां ठीक है, कॉपी करो जल्दी। 6 हो गया। हाँ सर कर लो। सर 7th वाला तो कर लिया है हमने। 7th वाला किया सर कब किया? सर शायद बुकलेट का सम है। तो बुकलेट में तो आपने एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करा है ना सर? ये 6th वाला भी बुकलेट का ही था। यस ये 7th कब किया? 7th so because we have done only exercise 1 questions till now. Yes sir, बुकलेट में कहाँ पर है सर, पूछिए ना जो बच्चे बोल रहे हैं। हाँ सर, होमवर्क दिया रहेगा शायद से उसमें रहेगा। एक्सरसाइज 4 का 60 सेकंड सम था सर। एक्चुअली अभी होमवर्क के लिए कर नहीं पा रहे सर, क्योंकि पार्ट टेस्ट भी आ रहा है। ओके हाँ ये वाला कराया कहाँ है? ये वाला सर 7th वाला कराया था, HCV का अपने वो एग्जांपल दिया था सर। हाँ यस सर, HCV का एग्जांपल था ये। ये तो अनस्टेडी स्टेट वाला कराया है। यस सर। हाँ सर। यस सर, HCV का 18 है सर। HCV का क्वेश्चन 18। सर एक और बात समझा सकते हो? तो ये था ना अनस्टेडी स्टेट में दोनों इक्वल नहीं होंगे। सर ये किया है हमने, क्लास में ही किया था HCV का सम। ओके तो डेल्टा क्यू इन और आउट दोनों इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे एब्जॉर्ब भी कर जाएगा, फिर दोनों को टाइम से डिवाइड कर किया। हाँ फिर इसके लिए यू हैव फॉर्मूला ना के ए dt by dx टेम्परेचर ग्रेडियंट एट ए, के ए dt by dx एट T। dq को क्या लिखने वाले हो? dq को ms dt by और इसमें से आपको निकालना है dt by dt निकालना है। लेक्चर हुआ ना। हाँ Sir, just explain this once ना then okay हाँ leave. देखो क्या गिवन है यहाँ पे, यू हैव दिस इज एन अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट है मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज जो है जितना वो ले रहा है उतना पास ऑन नहीं कर रहा है, कुछ पार्ट अपने लिए भी रख रहा है, उसकी वजह से वो उसका हीट टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। तो एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आउट प्लस एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करेगा टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब ये वाला क्या बन जाएगा कि और इसको हाँ इसके लिए इक्वेशन क्या है? के ए dt by dx होता है ना। सो माइनस भी आता है ना उधर? वो तो ग्रेडियंट बता, वो तो डायरेक्शन वो बताता है ना कि इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो कम होता है। ओके सर। हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो माइनस साइन वो इंडिकेट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिक्रीजेस। यस हाँ अब यहाँ से वैल्यू निकालो, कितना कितना आता है? 12.5। तो सर अगर रॉड्स के दोनों एंड्स के टेम्परेचर ग्रेडियंट डिफरेंट है तो इसका मतलब कि स्टेडी स्टेट नहीं है ना? रॉड के एंड का
नहीं स्टेडी स्टेट में मतलब स्टेडी स्टेट का क्योंकि मतलब सर वही है स्टेडी कि स्टेट में तो दोनों एंड से ग्रेडियंट सेम होना चाहिए ना, बस साइन डिफरेंट होगा। नहीं नहीं वो भी हो सकता है ना, अगर मान लो आपका जैसे यहाँ dt बाई ये है ना dt बाई dx क्या करते हैं dt बाई dx बाई स्लोप वेरी हो सकता है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, क्या याद है ऐसा वाला एक था अच्छा हाँ, यस सर। या k वेरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अरे dt बाय dt होगा ना dt बाई dt लास्ट वाला। सॉरी क्या करें, अरे सर लास्ट वाला वो तो dx ही रहेगा। ये dx ये वाला dx रहेगा, ये वाला सर पहले dx दोनों dx रहेंगे, लास्ट वाला dt हो जाएगा। ये dt यस सर। इसका मास गिवन है क्या, नहीं नहीं सर नहीं गिवन है इसलिए। सर हीट कैपेसिटी दिया हुआ मतलब ms दिया हुआ है। कैपेसिटी दिया है। ओ हाँ हाँ m into ms s दिया है, given, अच्छा गुड ms। m into s given, ठीक है। सर आज के लिए हो गया ना, बस इतना ही करना था। ओके गाइस ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। सर वो अभी टेस्ट कितने बजे से कैलोरीमेट्री है? वाला करके दो ना, 2 वर्क o'clock से। एनर्जी सर मेरे को एक HCV के थर्मल एक्सपेंशन का एक डाउट है। थर्मल एक्सपेंशन का ठीक है, अभी तो सबका अभी टेस्ट सर कितने जा बजे से है? सकते हैं। ठीक है, सर टेस्ट 2 कितने बजे बजे। से है? 2 बजे। 2 o'clock। 2 बजे से क्या टेस्ट, ओके ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। सर वो कैलोरीमेट्री वाला करो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम से, अरे हाँ उसमें वो कहाँ, उस दिन वाला डाउट। अरे तो उसको वही, अरे उस दिन अपने डिस्कस किया था ना, सिस्टम लेना है, किसको किसको सिस्टम लेना है। सर एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। अरे उसमें इक्वेशंस इक्वेशन तो लिखा था ना उस दिन का इक्वेशन तुमने कौन कॉपी सा किया था? क्वेश्चन सर? वो कैलोरीमेट्री का स्प्रिंग वाला। HCV 18। हाँ अरे वो था ना कैलोरीमेट्री का 18, वही था ना कि इसमें जो है इनिशियल में ये था, इनिशियल में ये स्ट्रेच स्प्रिंग था और ये ब्लॉक है ना, यस सर। और फाइनल में क्या है, फाइनल में ये स्प्रिंग अंदर ही है, ये स्ट्रेच्ड है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया है और ब्लॉक नीचे और उसकी जगह वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर है साहब ना, जो भी है ये है ना। यस सर। तो बस इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन, लॉस क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगा, टेम्परेचर में आ जाएगा है ना, मॉलिक्यूल्स का। सर तो हम लोग एग्जैक्टली लेते हैं क्या जब हीट कन्वर्जन लेते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं या टोटल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं? काइनेटिक एनर्जी, अरे मैकेनिकल एनर्जी नहीं लेते? पोटेंशियल नहीं नहीं नहीं, देखो क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो है टेम्परेचर देखेंगे, अब मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी किस में आएगी, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन तो चेंज नहीं हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज तो आ ही नहीं रहा मॉलिक्यूल्स में ना। मास तो चेंज, मास वो नीचे जा रहा है ना। ओके यू आर सेइंग दैट वे, हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि जो है मास अगर नीचे आया, मास अगर नीचे आया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुम ले रहे हो, ग्रेविटी को अलग कर रहे हो, वही ये हो जाएगा सब मतलब ज्यादा अच्छा ये रहेगा ना कि देखो ये वाला जो है आपका इस स्टेट और इस स्टेट के बीच में लिखो, ठीक है, तो इस स्टेट और स्टेट के बीच में लेने के लिए कैन वी फिर लीव? हाँ जिसका इसका हो गया गाइस, यू गाइस कैन, तो देखो इसके इस स्टेट और इस स्टेट में लिखना है, तो बेस्ट वही होगा कि आप उसका जो है देख लो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ और सीधा उसको काइनेटिक एनर्जी में कर दो। तो मतलब हमेशा काइनेटिक एनर्जी लॉस हम लोग क्यू के इक्वल क्यू में इक्वेट करते हैं। हाँ क्योंकि देखो अगर तुम बोलोगे मॉलिक्यूल्स का वो लेना है, वो तो मैं अकाउंट कर ही लिया था ना जब डिफरेंस ले रहा था, याद है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी में मैंने क्या लिखा था कि देखो क्या क्या लॉस हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर वाली एनर्जी चली गई है ना, इसका इसका लॉस हुआ, उसका गेन हुआ, तो हमने क्या लिखा था, प्लस मास ऑफ द ब्लॉक g इंटू एच है ना, जितना नीचे आया, और वाटर का राइस हुआ इसलिए माइनस mw g इंटू एच, ये लिखा था। दिस इज द नेट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, और इसको क्या लिख दिया था हमने, m टोटल इंटू s इंटू डेल्टा t, ये अंडरस्टूड। हाँ सर समझ गया। यस सर।
ना, उसको अगर तुम ऐसा करने जाओगे वर्क एनी थ्योरम से, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल पार्टिकल को देखना चाहते हो क्या? नहीं, वो इक्वेटिंग में समझ में नहीं आ रहा था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी करना था या काइनेटिक एनर्जी करना था, उसमें कंफ्यूज था। नहीं, अगर मान लो जो है तुम अगर इसमें दूसरा तरीका, मतलब पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम से लिखना चाहते हो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आएगा यार? वर्क एनर्जी थ्योरम से सिस्टम लेना पड़ेगा ना, पूरा सिस्टम किसको किसको लोगे? ग्रेविटी, तो क्या लिखोगे वर्क एनर्जी थ्योरम से? वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर करना चाहते हो तो क्या आएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, है ना, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूल्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू kf माइनस ki ना। यस हाँ सर, वही हो गया, वही हो गया। अब रुको रुको यहाँ पर, अब जो है काइनेटिक एनर्जी, अब भाई काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली जो है सब रेस्ट पे आ गए, काइनेटिक एनर्जी इसमें कहाँ चला गया? चेंज हम बोलेंगे ना, इसी में चला गया, और इसी में लिखोगे ना ये वाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो है बढ़ गई, मतलब क्या हो गया? उसका टेम्परेचर ms डेल्टा टी वाला टर्म आएगा उसमें, राइट? ये वाला है ना। अब जो है इसको क्या लिखोगे? ms डेल्टा टी क्या हुआ? प्लस लिखोगे ना ये वाला ms डेल्टा टी, ये काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ा उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो गया। ये अंडरस्टूड ना? मतलब बस काइनेटिक एनर्जी को ही हीट में कन्वर्ट करना है। हाँ, काइनेटिक, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का देखोगे ना, तो मॉलिक्यूल्स की जब एनर्जी लिखने जाओगे तो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? एक तो आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन, मतलब मॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाँ फोर्सेस वाला, इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या रहेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के ओरिएंटेशन की वजह से, अरे टू पार्टिकल सिस्टम का ग्रेविटेशनल या टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी कितना होता है? k q1 q2 by r। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा होगा था, तो ऐसा सोचो ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यस सर। तो ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स का देखोगे तो बस जो है मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन में कोई ज्यादा सब फर्क नहीं आया ना, ज्यादा मतलब वो वाला सिर्फ ग्रेविटी को छोड़ के वाला, तो बेसिकली सिर्फ हम बोलेंगे ग्रेविटी वाला पार्ट हटा लिए, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक वाला वैसे का वैसे ही है, तो इलेक्ट्रिक वाला वैसे का वैसे ही है, तो हम बोल देंगे कि भाई ठीक है, सिर्फ इसी का हुआ और वो सीधा काइनेटिक एनर्जी में चला गया। ये अंडरस्टूड? सर वो एक्चुअली वो एचसीवी Yes, के sir. प्रीवियस क्वेश्चन में उसने पूरा डेल्टा टीएमई को इक्वेट किया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। किसमें किसमें? वो एचसीवी में ही उसके पहले के क्वेश्चंस में उसने लिखा था अज्यूम दैट होल डेल्टा टीएमई गेट्स कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन था वो? क्वेश्चन नंबर यू हैव? सर सॉल्ट एग्जांपल का 6 में भी उसने नीचे मेंशन किया है। सॉल्ट एग्जांपल पेज नंबर कौन सा है? सर मेरे पास बुक नहीं है अभी, मतलब एक मिनट सर। सॉल्ट एग्जांपल 6 कैलरीमेट्री का? यस सर। हाँ सर। सॉल्ट एग्जांपल 6 के हाँ, इसमें दिया है लेड बॉल दिया हुआ है, द सब्सटेंस मोल्टन सब्सटेंस फॉल स्लोली ऑन द, नहीं क्या दिया है? ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। सर बस एंड में वो लिखा है उसने कि पूरा मैकेनिकल एनर्जी का चेंज को हीट में कन्वर्ट करना है, बस वो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, सॉल्ट एग्जांपल 6 यू आर सेइंग, यस सर। वही लेड बॉल एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड वही वाला? सर वो क्वेश्चन मत करो आप, वो उसमें बस मैं हाँ सर बोल रहा हूँ। हाँ बस उसमें ये बोल रहा हूँ मैं कि उसने एंड में बोला है कि डेल्टा टीएमई को हीट में कन्वर्ट करो, और इधर हमने खाली काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, lead ball at 30 degrees centigrade is dropped from a height of 6.2 kilometer. The ball is heated due to air resistance, completely melts before reaching the ground. The molten substance falls slowly on the ground. Calculate the latent heat of fusion. Assume that mechanical energy loss is used to heat the ball. हाँ, तो mechanical energy जो loss हुआ है यहाँ पर mgh, और उसको लोगों ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? m into l में, राइट? यस सर। हाँ, तो
यस, तो ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब बेसिकली वही उस हाइट पे जो था उसका अल्टीमेटली यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, और जैसे वहां से फॉल होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगा, फिर काइनेटिक एनर्जी जो है अल्टीमेट सोर्स क्या है, मतलब जो इनिशियली जो एनर्जी था वही फिर बीच में पार्शियल स्टेट में क्या जाएगा, काइनेटिक और काइनेटिक में कन्वर्ट होगा ना, यस सर, और फिर वो जो काइनेटिक है वही हीट में आ जाएगा। गॉट इट सर। यहाँ पे भी देखो वैसे जो है, यहाँ पे भी जो है सेम स्टेज कि हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन है वो वैसे का वैसे ही रहा ना, और ऐसे स्पेसिंग वेसिंग तो बढ़ा नहीं, तो उसको हमने वैसे ही रखा और ग्रेविटी के वक्त को इसमें इन्वॉल्व कर लिया। हाँ ओके सर। तो सर मेरा भी एक हाँ, डाउट है, आप अभी करोगे? क्या डाउट है बताओ हाँ, सर हीट एंड टेम्परेचर का 33rd सम मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूं? एक मिनट, I have the book. अच्छा अच्छा, एक सेकंड सर, आपको एक नंबर बताता हूँ। 33rd वाला, हाँ सर। लेकिन ये तो टॉर्शनल पेंडुलम का है, आपने एसएसएम पढ़ा नहीं है ना अभी तो। अच्छा ओके ओके सर। नहीं नहीं, देखो क्या दिया है, और टॉर्शनल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड डिस्क, thin wire दिया है, alpha at its center, find the percentage change in the time period between the peak, okay, percentage change निकालना है ना। चलिए ठीक है यार, टाइम पीरियड का, या टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या एटलीस्ट, इसका रोटेशन का फॉर्मूला आता है क्या? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G cos theta by L। नहीं, टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक के लिए ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई, हाँ, लीनियर स्टेट मोशन, और m by k हाँ m बाई स्प्रिंग k होता है, कांस्टेंट। हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, और या ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ i बाई c, ये वाला पढ़ा है क्या, i बाई c नो सर, नो सर, रोटेशनल, नहीं पढ़ा अभी ना, तक नहीं आया। सर पर अभी हाँ, रोशनी शुरू किया। अभी ठीक है, देखो i बाई c आगे आएगा, हाँ, फिर ना सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ना क्या होता है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर के हाँ सर वो प्रोपोर्शनल आता पढ़ाया हुआ है, सर पढ़ा m r भी है। स्क्वायर वो पढ़ाया है सर। है। ये देखो आई को सर पढ़ाएंगे m इंटू आर स्क्वायर बाई सी, हाँ, अब देखो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, है ना। तो अब जो है सी में जो है, सी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, सी टॉर्शनल कांस्टेंट ये ऐसा आ जाएगा। फिर टाइम पीरियड में जो है क्या पूछा है तो हमने फाइंड दी, हाँ ठीक है, तो यहाँ तक ये आ गया। अब ये अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर से क्या बाहर आ जाएगा, नया कांस्टेंट k1 टाइम्स r लिख सकते हैं ना, ये वाला, तो डेल्टा Yes, टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी क्या आएगा, चेंज इन टाइम पीरियड, डेल्टा r by r। एक मिनट, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर बाई आर, डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, आर अल्फा डेल्टा टी, है ना। यस सर, अल्फा डेल्टा टी। सर आ गया आंसर सर, थैंक यू सर। अरे हो रुको जाएगा अभी तो, हाँ सर, हो जाएगा हो जाएगा। इसका सर फाइंड द, सर हाँ सर मुझे एक हीट कंडक्शन में डाउट था, पूछो क्या? हाँ हाँ बताओ, बताओ। हाँ सर ये वाला अंडरस्टूड ना किसका था, सर अब मत करना है सर, स्क्रीनशॉट ले लो एक। थैंक यू सर। हाँ हाँ, हाँ सर उसमें आप डिराइव करे थे आर इक्विवेलेंट सबके लिए, एनुअलर सिलेंडर, एनुअलर स्फीयर, उसमें एनुअलर सिलेंडर में आपने बताया था हम लोग डिस्क नहीं ले सकते, एनुलर सिलेंडर, एलिमेंट्स के लिए हम लोग डिस्क नहीं ले सकते, आप नहीं बता ये रहे बताओ थे। कि हीट का फ्लो कैसा है, रेडियल या लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल। रेडियल में जो है आप देखो, आपको फॉर्मूला यूज करना है आर इक्विवेलेंट वाला, नहीं सर, मैं क्या बोल रहा था कि मैं डिस्क में ब्रेक कर दूंगा पर लेकिन मैं माने पूरे को पैरेलल अरेंजमेंट मानूंगा। अरे पैरेलल, पैरेलल के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम होना चाहिए ना, तो सेम है ना, 100 और 0। जैसे यार हीट तो ऐसे फ्लो हो रहा है ना रेडियली, अगर रेडियल फ्लो हो रहा है ना, ये इस मैटर के थ्रू हीट जा रहा है बाहर, तो इसको 100 लिया, ये 100 है पूरा, हाँ इस डिस्क कैसे ब्रेक करोगे, डिस्क मतलब ऐसे कट करोगे ना ऐसे, हाँ हाँ ऐसे। तो अगर डिस्क लोगे तो एक एक सभी डिस्क का ऐड करने की कोशिश करोगे, नहीं हाँ तभी तो आ रहे, तो हीट
ऐड करने की कोशिश कर, मतलब है इसमें हीट ऐसे जा रहा होता तभी तो ऐड करते। नहीं मैं पैरेलल अरेंजमेंट लूंगा ना। पैरेलल लोगे लेकिन टेम्परेचर्स तो ऐसे है ना, देखो यहाँ पर 100, यहाँ पर 90, यहाँ पे 80, यहाँ पे 0 है, तो किसको किसको लोगे? डिस्क भी बनाना है और ये भी, दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगा? कैसा एलिमेंट लोगे डिस्क, बताओ? डिस्क के अक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस हर डिस्क के अक्रॉस तो 100 और 0 तो सेम है ना, तो अरे सबके तो डिस्क को मैं ऐड करूंगा तो फिर सेम ही हो जाएगा। तो हाँ, तो सभी डिस्क का कैसे निकालो, एक एक डिस्क का कैसे निकालो ये बताओ? सर वो R2 बाय R2 माइनस R1 अपॉन K 2 पाई R1 डॉट dx, dx जो थिकनेस है डिस्क का। R equivalent is integral of dr of the disk। हाँ, अब डिस्क वो तो को कैसे सीरीज write के लिए ना सर। अब सीरीज का किया ना इंटीग्रेशन, हाँ लेकिन मैं तो पैरेलल ट्रीट कर रहा हूँ ना। पैरेलल ट्रीट कर रहे हो, किसको किसको पैरेलल ट्रीट कर रहे हो यहाँ पर? हर डिस्क को। यहाँ पर जो है यू आर ट्रीटिंग देम एज पैरेलल, सेम सेम हीट ऐसा फ्लो होता है ऐसा। हाँ हाँ ये 100 है और ये ला 0, सब में ऐसे जा रहा है बाहर हीट। हाँ हाँ, फिर उसके बाद ये हीट ये ऐसा हो गया, फिर नेक्स्ट एक डिस्क का कैसे निकालोगे पहले ये बताओ? हाँ सर वही dr इज इक्वल टू R2 माइनस R1 जो लेंथ है। R2 minus R1 is the length। एरिया एरिया हो जाएगा मेरा K 2 पाई R1 डॉट dx, dx जो थिकनेस है डिस्क का। नहीं, थिकनेस ये है, R2 minus R1 है। वो तो लेंथ हो गया ना R2 माइनस R1। हाँ, तो एरिया एरिया जो मेरा वो डिस्क का जो इतना थिकनेस से जा रहा है वहां से। डिस्क का थिकनेस मतलब ये वाला थिकनेस। हाँ dx में ले लूंगा उसको। हाँ, इसको dx ले लिया, फिर dx इनटू कौन सा लेंथ? 2 पाई R1। 2 पाई R1। हाँ वो लेंथ सर्कम्फरेंस है ना बाहर का 2 पाई वहां से। R1 तो यहाँ, 2 पाई R1 तो यहाँ के लिए है, फिर यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई R1 2 पाई R2 भी dx। हाँ 2 पाई R2, अच्छा R2 हाँ। तो अलग अलग हो गया ना, उसका कैसे करोगे? अलग अलग कैसे? अरे यार, इसका यहाँ पे निकालोगे ना, फिर एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, तो कौन सा एरिया ले रहे हो? एक एलिमेंट का तो एक ही एरिया होना चाहिए ना। तो मैं सबसे आउटर मोस्ट कंसिडर कर रहा हूँ। कभी बोल रहे हो इनर मोस्ट, कभी आउटर मोस्ट, और दोनों अलग अलग है तो कैसे कंसिडर कर सकते हो? सेम होना चाहिए जो भी है। एंड में तो वहां से बाहर आ रहा है ना आउटर मोस्ट से। आंसर क्या? नहीं एंड में तो आउटर मोस्ट से ही हीट आ रहा है ना। ऐसा नहीं लेते हैं, जो भी एलिमेंट लेंगे उसका एक एरिया होना चाहिए। एलिमेंट इसलिए तो लिया है, वेरिएबल था नहीं, ये तो डायरेक्टली आपका जो है इसको dx टी बोल के, सबका dx सेम है, सबका t सेम है, तो ऐसे नहीं लिख सकते है ना। एलिमेंट जो लेंगे उसका एक एरिया होना चाहिए ना। तो एक एरिया क्यों नहीं है यहाँ पे, वो नहीं समझ में आ रहा। तो भाई यार, अंदर वाले का एरिया कितना है? 2 पाई R1 into dx है कि नहीं है? हाँ अंदर का उतना है। और बाहर वाले का क्या है? 2 पाई R2 into dx है कि नहीं है? हाँ तो एक ही एलिमेंट में दो एरिया हो गए ना, तो तुम्हारा एलिमेंट ही रॉन्ग हो गया फिर। अच्छा अच्छा समझा समझा। तो उसको भी इंटीग्रेट करके एलिमेंट को निकालना पड़ेगा फिर जाके करना हाँ, पड़ेगा। तो वैसे करने की बजाय डायरेक्टली यही वाला ठीक था ना, शेल्स लेके करना। हाँ समझ, सीरीज बेस्ट होता है मतलब। शेल्स लो और डायरेक्टली उसको एक एक शेल में हीट सेम है, हीट सीरीज हो गया, सीरीज में आर को ऐड करते चले जाओ। और वहां पे कोई एम्बिग्युइटी भी तो नहीं आ रहा ना, एरिया सबका एरिया वही है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RL। हाँ क्योंकि dx है ना उसका लेंथ। ठीक है समझ गया सर। हाँ हाँ सर थैंक यू। और किसका था? अनुष्का अंधेर। एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स प्लीज आस्क, किसी और का था? कोई डाउट नहीं है? यस हाँ। So I don't have any doubt, but I just wanted to tell that I couldn't switch on my mic because मेरे background में से बहुत आवाज आ रहा था ना. You asked me to.
Okay, 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 Alina. Yes, I asked you one question. Okay, okay. वो बहुत आवाज आ रहा था तो I didn't switch on my mic. Okay, okay, no problem. Okay. Yeah, understood ना, but आज का ये वाला. हाँ, yes sir. Okay, okay. ठीक है, guys. So we will continue in the next class Monday ना. तो ठीक है, guys. Okay, all. Bye. Bye. Okay, all. Bye.